बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा मोर ऑन एमएस पावर पॉइंट 2016। इंट्रोडक्शन। PowerPoint is a useful application that provides various tools, features and effects to improve the appearance of presentation. These special effects help you in making your presentation attractive, effective, engaging and professional. बच्चों, PowerPoint जो है एक यूजफुल एप्लीकेशन है जो कि आपको बहुत सारे फीचर्स, इफेक्ट्स, टूल्स प्रोवाइड कराता है ताकि आप अपने प्रेजेंटेशन को और भी अपीयरेंस बना सके, अट्रैक्टिव बना सके। ये स्पेशल इफेक्ट्स जो है वो आप अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं ताकि आपका प्रेजेंटेशन जो है अट्रैक्टिव, इफेक्टिव, एंगेजिंग और प्रोफेशनल लगे। अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स. Moving objects such as text, graphics, charts, logos, etc. that are made up of a sequence of images displayed one after another on the basis of slide are called animations. बच्चों, एनिमेशन क्या है? टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट, लोगोस, इन सभी चीज़ को मूव करना, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें मूव करना, जो कि बने होते हैं जिसमें कई सारे सीक्वेंसेस होते हैं, इमेजेस होते हैं, ताकि आप स्लाइड में लगा सकें। इससे एनिमेशन कहा जाता है। इट गिव्स यूजुअल visual effects to your presentation and also sizzle up your slide objects like text, pictures, shapes, tables, smart art, graphics, etc. by applying sound effects. बच्चों, इसमें आप sound effects भी apply कर सकते हैं। To apply animation effects to the slide objects, follow the given steps. Open any presentation. Select the object that is to be animated. On the animations tab of the ribbon in the animation group, click the more button and then select the animation effect that you want. A drop down menu will appear and 4 different categories of animation effects, which are as follows. Entrance. As the main name indicates, these effects determine the manner in which an object enters into a slide during the slideshow. These effects make an object fade gradually into focus, fly on the side, slide from an edge, bounce into view and so on. Emphasis. These effects decide how the objects on the slide draw attention to themselves during the slideshow. These effects make an object shrink or grow in size, change color or spin on its center, etc. Exit. These effects control the manner in which the object exits from the slide during the slideshow. Some of these effects are disappear, fade, fly out, float out, split, etc. Motion paths. You can use these effects to make an object move up or down, left or right, or in a circular pattern, etc. You can also control when an animation should be played by clicking on the drop down button of the start box in the timing group and selecting any one of the displayed options. On click, to start the animation after a mouse click. With previous, to start the animation at the same time as the previous animation effect in the list. After previous, to start the animation effect immediately after the previous effect in the list finishes. To specify or set the timing of the effects, use duration box available in the timing group. It helps you to change and control the speed of animation effect. Similarly, you can set the delay time before the animation begins by using the delay box. You can also use reorder animation buttons to change the order in which the animation effects appear. Click on the preview button in the preview group to view the effects applied on the current slide. तो बच्चों, अगर आपको एनिमेशन के इफेक्ट्स को अप्लाई करना है अपने स्लाइड ऑब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन को ओपन करना है, फिर सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को ताकि आप उसमें एनिमेट कर सकें। अब एनिमेशंस का जो टैब है, जो कि हमें एनिमेशन ग्रुप के रिबन में दिया गया है, क्लिक करना है मोर बटन पर और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है एनिमेशन इफेक्ट को, जो भी हम चाहते हैं। उसके बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमें अपीयर होगा, डिफरेंट कैटेगरीज उसमें होंगे, डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट्स होंगे जो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा एंट्रेंस। जैसे कि नाम में ही इंडिकेट किया गया है, इस इफेक्ट के अंदर हम किसी भी स्लाइड शो के अंदर जाकर उसमें ऑब्जेक्ट को एंटर कर सकते हैं। ये क्या करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट में इफेक्ट्स डालेगा, फोकस, फ्लाई, इस तरीके के, जिसमें आएगा व्यू, बाउंस, एज और भी कई सारे। फिर आएगा एम्फेसिस। ये जो इफेक्ट है ये डिसाइड करेगा कि कैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड ड्रॉ अटेंशन में स्लाइड शो में जाएगा, और ये इफेक्ट ऑब्जेक्ट को श्रिंक करेगा, ग्रो करेगा, जिसमें हमें साइज
और कलर को चेंज कर सकते हैं, हम स्पिन कर सकते हैं उसके सेंटर को। फिर आता है एग्जिट, ये कंट्रोल करता है इफेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जिट करने से, यानी स्लाइड को अगर हम स्लाइड शो को चला रहे हैं तो ये कंट्रोल करता है उसे, जिसमें इन इफेक्ट्स में आता है डिसअपियर, फेड, फ्लाई, आउट, फ्लोट, आउट और स्प्लिट एक्सेट्रा। फिर आता है मोशन पाथ्स। बच्चों इस इफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी स्लाइड शो को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, लेफ्ट करने के लिए, राइट करने के लिए, किसी सर्कुलर पैटर्न में। इसके साथ ही हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं एनिमेशन को। क्लिक करके ड्रॉप डाउन बटन हमें दिखाई देगा, मेन्यू अपीयर होगा स्टार्ट बॉक्स में, और उसके बाद ये आएगा टाइमिंग ग्रुप में। वहां से हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी डिस्प्लेड ऑप्शन को जिसमें दिया गया है ऑन क्लिक। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एनिमेशन को माउस पर क्लिक करके। विद प्रीवियस में दिया गया है, हम स्टार्ट करेंगे एनिमेशन को सेम टाइम पर प्रीवियस एनिमेशन के इफेक्ट को जो लिस्ट में दिया गया है। आफ्टर प्रीवियस में हम यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट जो ये है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा प्रीवियस इफेक्ट के बाद में, जब लिस्ट फिनिश हो जाएगी। अब आ जाते हैं आगे। अब अगर हमें स्पेसिफाई करना है, ये सेट करना है इफेक्ट्स की टाइमिंग को, उसके ड्यूरेशन को, तो हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन बॉक्स में जाएंगे। वहां पर टाइमिंग ग्रुप में ड्यूरेशन बॉक्स है, ये हमें हेल्प करेगा चेंज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसी भी एनिमेशन के स्पीड को। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अगर जो एनिमेशन है वो डिले हो चुका है या टाइम से पहले स्टार्ट हो चुका है, अगर हमें उसे स्टार्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, डिले बॉक्स पर उसे क्लिक करेंगे। इसके साथ ही हम रीऑर्डर एनिमेशन बटन में भी जा सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं एनिमेशन के इफेक्ट्स को, उनके ऑर्डर को। उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू बटन पर जो कि प्रीव्यू ग्रुप में दिया गया है, और फिर हम इफेक्ट जो भी हमने करंट स्लाइड में डाले हैं इतने सारे, वो अब हमें अपीयर होगा, हमें दिखाई देगा। Adding transition effects. Transition effects emerge when one slide changes to the other during slideshow view. You can apply transition effect to a single slide as well as to all the slides. To add transition effects, follow the given steps below. Select the slide on which you want to apply a transition. Click on the Transitions tab. Transition to this slide group emerges on the ribbon displaying multiple transition effects. Click on the More drop-down arrow to exhibit all the transition effects. Choose any transition effect from the exhibited choices. The current slide will display a preview of the selected effect. Select the effect options in the transitions to this slide group to select any effect from the displayed list. For some transitions like curtains, prestige, this option remains deactivated. Click on the drop down arrow of the sound option in the timing group and choose any sound effect of your choice. Click on the preview button and notice its effect. Fix the transition timing by entering the number of seconds or minutes in the duration box in the timing group. Choose the on mouse click checkbox if you want to advance the slide by clicking the mouse. Click on the after checkbox if you want the slide to advance automatically to the next one after a certain period of time. Click on the apply to all button to apply the selected effects on all the slides, otherwise those effects will be applied on the current slide only. बच्चों ट्रांजिशन के इफेक्ट्स जो है, अगर हमने मर्ज करना चाहते हैं, स्लाइड में चेंजेस लाना चाहते हैं स्लाइड के दौरान ही, तो उसमें हम ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे हम उसे एक स्लाइड में अप्लाई करना चाहें या पूरे स्लाइड्स में अप्लाई करना चाहें, यानी ऑल स्लाइड्स में अप्लाई करना चाहें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए उस स्लाइड को जिसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं। पहले क्लिक करेंगे ट्रांजिशंस के टैब पर, फिर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में जाकर हम उसमें देखेंगे कि बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो है ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं, इमर्ज हो चुके हैं। फिर क्लिक करेंगे मोर ड्रॉप डाउन एरो पर ताकि हम ट्रांजिशन के इफेक्ट्स को देख सकें। चूज करेंगे किसी भी ट्रांजिशन के इफेक्ट्स को एग्जिबिट चॉइसेस से। फिर जो हमारा करंट स्लाइड है वो उसको हम प्रीव्यू करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उस इफेक्ट को, फिर सिलेक्ट करेंगे इफेक्ट ऑप्शंस को जो कि ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड ग्रुप में दिया गया है, और सिलेक्ट करेंगे किसी भी इफेक्ट को जो डिस्प्ले किया गया है। और फिर किसी भी ट्रांजिशंस के लिए जैसे कर्टेन्स, प्रेस्टीज, ये सारे ऑप्शंस
हमें डीएक्टिवेट रिमेन हो जाएगा। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पर, उसके बाद में आएगा साउंड का ऑप्शन जो कि दिया गया है टाइमिंग ग्रुप में। अगर हम साउंड के इफेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे प्रीव्यू बटन पर और फिर हम अपना इफेक्ट को नोटिस कर सकते हैं। हम ट्रांजिशन के टाइमिंग को भी एंटर करने से पहले, चाहे हम उसे सेकंड्स में चलाना चाहते हैं, मिनट्स में चलाना चाहते हैं, ड्यूरेशन बॉक्स में जाकर हम उसे भी फिक्स कर सकते हैं जो कि टाइमिंग ग्रुप में दिया गया है। चूज करेंगे ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स पर। अगर हम स्लाइड को एडवांस करना चाहते हैं तो फिर क्लिक करेंगे आफ्टर चेक बॉक्स। अगर हम स्लाइड को ऑटोमेटिकली एडवांस करना चाहते हैं तो फिर क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल बटन पर। अगर हम इस इफेक्ट को सारे स्लाइड्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हम ये नहीं करते हैं तो वो इफेक्ट जो है करंट स्लाइड पर ही आपको नजर आएगा। बच्चों अब आ जाते हैं इंसर्टिंग साउंड क्लिप्स पर। Effect of music or sound can add a completely new dimensions to any presentation. You can add sound in the form of background music or special effects to give importance to specific content. Sound files can be added from the file stored on your computer or on a CD. You can even record your own narration or comment and then edit the audio to customize if फॉर योर प्रेजेंटेशन। बच्चों अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में म्यूजिक साउंड के इफेक्ट को भी डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप इसमें किसी बाहर म्यूजिक को भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप अपने भी साउंड को इसमें रिकॉर्ड करके अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एडिंग साउंड फ्रॉम अ फाइल। फर्स्ट सिलेक्ट अ स्लाइड वेयर एन ऑडियो इज टू बी एडेड। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, go to media group and select the drop down arrow of audio option. A drop down list appears. Select audio on my PC option from the list. An insert audio dialog box appears on the screen. You need to browse and select the audio file and then click on insert button. You will see a small speaker icon appears in a slide which indicates that an audio file is inserted. When an audio file is inserted in a slide, two new tabs also appear under Audio Tools tab, Format and Playback. Go to Playback tab, click on Automatically option. If you want an audio to start, play automatically when the slide opens, or click on click option in which an audio will play on a mouse click. While running a presentation, if you click on speaker icon, then an audio will be played. बच्चों अगर आप अपने फाइल में साउंड को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा उस स्लाइड में उस ऑडियो को जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। फिर क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे, उसके बाद आप मीडिया ग्रुप में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे उसे, और फिर आपके पास में ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा जो कि ऑडियो ऑप्शन में आएगा। जो लिस्ट है वो नजर आएगा आपको आपके स्क्रीन पर। सेलेक्ट करेंगे ऑडियो ऑन माई पीसी के ऑप्शन में लिस्ट में से, फिर इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स हमारे स्क्रीन पर हमें नजर आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत है ब्राउज को सिलेक्ट करने की ऑडियो फाइल से और फिर क्लिक करेंगे इंसर्ट के बटन को। अब हम देखेंगे एक स्मॉल स्पीकर आइकन हमें अपीयर होगा हमारे स्लाइड में जो कि इंडिकेट करेगा ऑडियो फाइल को इंसर्ट करने के लिए। वो इंसर्टेड हमें ऑडियो फाइल नजर आएगा। फिर जब एक ऑडियो फाइल इंसर्टेड हो जाएगा स्लाइड शो में तो दो नए टैब्स हमें नजर आएंगे जो कि है ऑडियो टूल्स और फॉर्मेट, जो कि प्लेबैक के अंदर ऑडियो टूल्स के अंदर है टैब फॉर्मेट और प्लेबैक। अब हम प्लेबैक टैब में जाएंगे, क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ऑप्शन पर। अगर हम एक ऑडियो को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली प्लेइंग पर क्लिक कर देंगे, स्लाइड ओपन हो जाएगा। फिर हम और पर क्लिक करेंगे जो कि ऑन क्लिक के ऑप्शन में है, जहां पर आप माउस को पर क्लिक करके आपका जो ऑडियो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब जब हम प्रेजेंटेशन को रन कर रहे हैं, अगर आप स्पीकर के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। बच्चों अब आ जाते हैं रिकॉर्डिंग वॉइस नरेशन। टू नरेट अ प्रेजेंटेशन अ माइक्रोफोन मस्ट बी अटैच्ड और बिल्ट इन योर computer. You record the narration for slides, one slide at a time or all at one time, and the recording is stored in the PowerPoint file, not in a separate audio file. Place your script on your desk and follow these steps to record a voice narration for a slide. Select the slide that needs a voice narration. Go to the Insert tab, open the drop-down list on the Audio button and choose Record Audio. You see the Record Sound dialog box shown here. Click the Record button and start reading your script.
Click the stop record button when you want to pause recording. Click the record button to resume recording. You can click the play button at any time to play back what you have recorded so far. Notice that the dialog box notes how many seconds your recording lasts. Click the OK button in the record sound dialog box when you have finished recording the narration for your slide. The audio icon appears on your slide to show that your slide is accompanied by an audio file. बच्चों, जो वॉइस नरेशन को रिकॉर्ड करना है, यानी अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में नरेट करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक माइक्रोफोन की, ताकि वो आपके कंप्यूटर में अटैच्ड हो, ताकि आप जो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आसानी से रिकॉर्ड हो जाए। तो बच्चों, अगर आप अपने स्क्रिप्ट में इसे ऐड करना चाहते हैं, इसे प्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करेंगे हम स्लाइड को, जो भी वॉइस नरेशन हम जिसमें डालना चाहते हैं, फिर जाएंगे इंसर्ट टैब में, उसके बाद ओपन करेंगे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को, जो कि है ऑडियो बटन में, चूज करेंगे रिकॉर्ड ऑडियो को। यहाँ पर हम देखेंगे रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स हमें नजर आएगा। क्लिक करेंगे रिकॉर्ड बटन पर और स्टार्ट कर देंगे हमारे स्क्रिप्ट को रीड करना। अब क्लिक करेंगे स्टॉप रिकॉर्ड बटन पर अगर आप अपने रिकॉर्डिंग को पॉज करना चाहते हैं, और अगर उसे रिज्यूम करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग को, तो हम रिकॉर्ड के बटन पर ही दोबारा से क्लिक करेंगे। अब आप क्लिक कर देंगे प्ले बटन पर जब भी आपको लगेगा कि आप दोबारा से रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि एक डायलॉग बॉक्स नोट्स आपके सामने कुछ सेकंड्स के बाद नजर आएगा, जो कि आपको दिखाएगा कि आपकी रिकॉर्डिंग कब लास्ट हुई है, वो कितने सेकंड की है, कितने मिनट की है। क्लिक कर देंगे ओके बटन पर। रिकॉर्ड साउंड का डायलॉग बॉक्स हमें नजर आएगा जब भी आपको लगेगा कि अब आप रिकॉर्ड करना बंद करना चाहते हैं तब। उसके बाद ऑडियो आइकन अपीयर होगा आपके स्लाइड पर, जो कि आपको बताएगा कि ऑडियो फाइल अकम्पनाइड हो चुका है। बच्चों, अब आ जाते हैं इंसर्टिंग वीडियो क्लिप्स पर। वीडियो क्लिप्स आर शॉर्ट क्लिप्स ऑफ वीडियो usually part of a longer recording. They add liveliness to the presentation. PowerPoint enables you to insert a video onto a slide and play it during your presentation. To insert video clip into a slide, follow the given steps below. Firstly, you need to select a slide where you want to insert a video clip. Click on Insert tab, go to Media Group and select the drop down arrow of video option. A drop down list appears. Click on Video on a My PC option from the list. An insert video dialog box appears on the screen. You need to browse and select the video and then click on insert button. Two tabs also appear on the ribbon under video tools tab, that is format and playback. A format tab can be used to format the added video. To play the video, you need to find the play button under the video or at extreme left of the ribbon and click on it. बच्चों, अगर आपको इंसर्ट करना है वीडियो क्लिप्स को, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो स्लाइड शो है, वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, एनहांसिंग हो जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले आप उस स्लाइड पर क्लिक करेंगे जहां पर आप वीडियो क्लिप को इंसर्ट करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर। अब जाएंगे हम मीडिया ग्रुप में, सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन एरो को जो वीडियो ऑप्शन में है, और इसके बाद हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है नजर आएगा। क्लिक करेंगे वीडियो ऑन माय पीसी के ऑप्शन पर लिस्ट में से। अब इंसर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स हमारे स्क्रीन पर हमें नजर आएगा। अब क्या ज़रूरत है बच्चों, हमें ज़रूरत है कि हम ब्राउज में जाकर सिलेक्ट करेंगे उस वीडियो को और फिर इंसर्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। दो टैब हमें नजर आएगा रिबन के अंडर, जो कि है वीडियो टूल्स के अंडर टैब में दो टैब्स हैं, जो कि है फॉर्मेट एंड प्लेबैक। बच्चों, जो फॉर्मेट टैब है उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मेट करने के लिए और वीडियो को ऐड करने के लिए। उसके बाद अगर हम वीडियो को प्ले करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले देखना है कि प्ले बटन कहाँ है। प्ले बटन के अंदर जाएंगे, वीडियो के अंदर जाएंगे और फिर हम एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे रिबन के, और फिर प्ले बटन पर जाकर हम क्लिक कर देंगे और अब हम अपना वीडियो देख सकते हैं। Importing data from Word. PowerPoint allows us to import data from the applications such as Word, Excel, etc. and use it in the presentation. Importing data saves our time and efforts. To import data from Word file, follow the given steps below. Open Word 2016 and create a new document. Select the View tab, then click on the outlining button in the Views group. Type the text as shown below. Now click on
close outline view button to return to the print layout view. Save the file with the name introduction to computer and exit from Microsoft Word. Start PowerPoint and open any existing presentation. Click on the View tab and select the Slide Sorter button. Now click on the New Slide drop-down menu on the Home tab. Select the slides from Outline option. The Insert Outline dialog box will appear. Browse the location of the Word file Introduction to Computer. Select the file and click on the Open button. Notice that 2 new slides will get inserted and display the text in a style which you have applied. बच्चों, अगर आप किसी भी डाटा को वर्ड से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो पावर पॉइंट आपको अलाउ करता है ताकि आप किसी भी एप्लीकेशन से डाटा को इंपोर्ट कर सके, जैसे कि वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा, कहीं पे भी जाकर के आप इंपोर्ट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपने प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। लेकिन आप इसे इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको ओपन करना है वर्ड 2016, क्रिएट करना है न्यू डॉक्यूमेंट को, सिलेक्ट करना है उसमें व्यू टैब पर और फिर क्लिक करना है आउटलाइनिंग बटन्स पर जो कि दिया गया है व्यूज ग्रुप में। फिर टाइप करना है टेक्स्ट को, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक करना है क्लोज आउटलाइन या व्यू आउटलाइन, या फिर रिटर्न में आ जाएंगे प्रिंट लेआउट व्यू पर। फिर सेव करेंगे फाइल को किसी भी नाम से, जैसे कि हम नाम ले रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से एग्जिट ले लेंगे। अब स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट को और ओपन करेंगे किसी भी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को, क्लिक करेंगे व्यू टैब पर, सिलेक्ट करेंगे स्लाइड सॉर्टर बटन पर। अब हम क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड पर, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, होम टैब में दिया गया है ये। सिलेक्ट करेंगे स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन ऑप्शन को। अब इंसर्ट आउटलाइन डायलॉग बॉक्स हमें नजर आएगा। ब्राउज करेंगे लोकेशन को वर्ड फाइल के में से, और वर्ड फाइल में से हम लेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो कि हमने वर्ड फाइल में सेव किया हुआ था। सिलेक्ट करेंगे फाइल को और क्लिक करेंगे ओपन के बटन पर। अब हम नोटिस करेंगे कि 2 स्लाइड्स जो है वो इंसर्ट किया गया है, डिस्प्ले किया गया है, टेक्स्ट अब हम देख सकते हैं वो अप्लाई हो चुका है। बच्चों, अब आ जाते हैं @NOIT पर। Moving objects such as text, graphics, charts, logos, etc. that are made up of a sequence of images displayed one after another on the basis of slide are called animations. Transition effects emerge when one slide changes to others during slideshow view. Effects of music or sound can add a completely new dimension to any presentation. A microphone must be attached or built into your computer to narrate a presentation. Video clips add liveliness to the presentation. PowerPoint enables you to insert a video onto a slide and play it during presentation. PowerPoint allows you to import data from other applications such as Word, Excel, etc. and use it in the presentation. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। Fill in the blanks with the help of words given below. Dash are the special effects that you see one slide changes to another in slideshow view. बच्चों, कौन सा है ये? करेक्ट, ट्रांजिशंस। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट T for true और F for false statements. You cannot add more than one animation to the same object. False. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Take the correct option. Dash effects make an object shrink or grow in size, and that is entrance, emphasis, animation. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। स्किल शीट, क्विक स्किल्स। नेम एनी 2 एनिमेशन इफेक्ट्स दैट बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। लैब स्किल्स, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑफ कीज टू सक्सेस हैविंग एटलीस्ट 6 स्लाइड्स इन इट। बच्चों, 6 स्लाइड्स होने चाहिए और आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है जिस 6 स्लाइड्स में जो टॉपिक है कीज टू सक्सेस होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, फाइंड द शॉर्टकट कीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस इन पावर पॉइंट। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट स्किल्स, make a presentation of 20 slides on the topic diversity in India. This presentation should depict the history, culture, festival, food, languages, etc. of our country. Apply all the formatting effects you have learned. Apply beautiful themes to your slides. Add different transition and animation effects to your presentation. Make use of action buttons wherever possible. बच्चों, 20 slides
का आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है। किस टॉपिक पर? डाइवर्सिटी इन इंडिया। इस टॉपिक में, इस प्रेजेंटेशन में हिस्ट्री होनी चाहिए, कल्चर, फेस्टिवल, फूड, लैंग्वेजेस होनी चाहिए हमारी कंट्री की। आप इसमें सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स जो भी आपने अभी इस चैप्टर में पढ़े हैं, सीखे हैं, वो सभी अप्लाई कीजिए। बहुत सारे ब्यूटीफुल थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन, एनिमेशन इफेक्ट्स को अपने प्रेजेंटेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।